टू स्ट्रेच, ठीक है। लेकिन चक्की चालासन करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे आइए, आपके एल्बोज को जमीन पे रखने की कोशिश करिए। नहीं होता आपसे, कोई बात नहीं, ट्राई करिए और करते समय ब्रीथ करिए। टोस को टच करिए। क्या बात है, आपको ये फील होगा, यू फील अ बर्निंग सेंसेशन ऑन योर हैमस्ट्रिंग। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेच। आप ऊपर आइए। नाउ यू गो फ्रॉम साइड टू साइड। फर्स्ट राइट, center, left, right, ऐसे। ब्रीदिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। Try and hold that position for at least 10 seconds. For all those watching me, you're doing really well. Just the fact that you are making the effort is what counts. Let's do it with the next leg. Right leg in front, left leg bent. Stretch your body up, breathe. Exhale, come down and try and touch your knees. Six, 7, 8, 9, 10. Come up. अब हम करेंगे तितली आसन. This is again great for opening up your hips. Strengthens your glutes, your legs. Bring your feet together, hold it, and just flap your legs like a butterfly. बिल्कुल तितली की तरह. Hope you're enjoying this session. I hope जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि यू कैन डाउनलोड द शिल्पा शेट्टी ऐप, और ये ऐप बहुत ही प्यार से मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही दिल से आप लोगों के लिए जो सही your entire body. Oh wow, it's beautiful. Now take both your palms, lock them at the back like this. 8, 9, 10. उसी पोजीशन में रहिए. अब हम करेंगे नौकासन. Do it slightly simple, make it slightly simpler for you. Bring your feet slightly closer. पहले पैरों को उठाइए. Now be in the shape of a boat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's see you do it for 5 more seconds. 1, 2, 3, 4, 5. आराम से नीचे आइए. That was really good. That's like a real core burner. We do that again because इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज हम बहुत कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, खा रहे हैं. तो उस फैट को बर्न करने के लिए नौकासन से बेहतर
कोई उपाय नहीं योगा में. So it really strengthens the core, and when your core is strengthened, you feel strong. ठीक है? So we do that again. We come into the boat pose. You have to feel the burn in the center. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tense all your muscles on your legs tightly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All the chin. Wow. Oh. Job. Do that again. Inhale. Go up. Exhale. Down. Oh, this is so relaxing. Okay, that's that. Come into child's pose. Stretch. Now bring your arms on either side of your legs. This is called Balasana. Also activates your thyroid glands. तो जो लोग थायराइड के साथ सफ़र करते हैं ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है. So we do this. So I will show you how it's done. Take in a deep breath through your throat. Exhale again through the throat. ठीक है? क्या होगा? You do it. Take a deep breath in through the throat. Inhale. Now keep your hands on your waist and we do the same thing. Now hold your elbows and we do the same thing. Inhale, put your hands up. Exhale, bring your hands down. Inhale. इसके अलावा आप कपालभाति भी कर सकते हैं. रोज करिए प्लीज. इट्स अ रियली इफेक्टिव प्राणायामा. It cleanses your mind, it oxygenates it, it clears your thoughts, makes you think positively. And ये जो सारे नियम हैं योगा में, they really help you just clean the way you think, you know, not just for yourself, even for others. And I really think it's a great practice to do pranayama. इसमें तो मतलब इसके लिए तो मैट की भी जरूरत
पे करना चाहिए। आप अपने घर के फर्श पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर यू डोंट डू इट विद सॉक्स एट दैट टाइम, ओके। The things that we can do to improvise our health, our immunity, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह मैं हमारे पीएम का स्पीच देख रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि काढ़ा पियो। तो काढ़ा आप किस चीज़ का बनाएंगे? आप रेडीमेड काढ़ा तो मत पीजिए, यू कैन एक्चुअली मेक इट एट होम। बहुत आसान है। आप जिंजर ले सकते हैं, उसमें आप काली मिरी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, यू कैन पुट सम सिनेमन, और ये चीज़ें जो है बहुत आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं और हनी डाल के पी सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है, या गुड़ डाल के पी सकते हैं इस कंकॉक्शन को। और बहुत लाभदायक है, स्पेशली ऐसे समय में जहाँ पे पीपल आर फॉलिंग सिक, not just with the fear of this virus, just generally also with the common cold, the flu, ऐसे situations में भी ये काढ़ा जो है बहुत कमाल का होता है। Also there are a lot of food items that you can include, जैसे कि विटामिन सी से भरे फ्रूट्स और वेजीज। तो विटामिन सी के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कौन से फ्रूट्स हैं? पपाया सीज़न में भी है और ऑल ईयर राउंड मिलता है एक्चुअली हमारे कंट्री में। तो आप पपाया को एक स्लाइस पपाया काटिए थोड़ा सा नींबू डाल के। इट एक्चुअली हैज़ all the vitamin C that you need in a day, and मैंगोज़ अभी सीज़न में है तो मैंगोज़ भी खा सकते हैं। और जिंजर सॉल्ट, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ के मैं एक पूरा टेबल स्पून घी, सॉल्ट और टर्मरिक और थोड़ा सा पेपर डाल के मैं उसको मिक्स करके मैं उसे पीती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ। और मैं पहले बहुत सफ़र करती थी साइनस के साथ, और मेरे लिए तो मतलब इसके इंक्लूजन से बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे साइनस पे। इट्स बिन रियली पॉजिटिव। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ की चिक्की बना सकते हैं फॉर ऑल योर स्वीट क्रेविंग्स, and you can put some black sesame seeds in it, you can put sunflower seeds, you can put almonds, you can put सौंफ, थोड़ा सा black salt डाल थोड़ा सा rock salt डाल सकते हैं, you can put pumpkin seeds, तिल, black sesame seeds जो बोलते हैं तो white में भी मिलता है, आपको काले में भी मिल जाता है। वो सारी चीज़ों को मिक्स करके आप ये चिक्की बना सकते हैं। और इसे मतलब हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सॉफ्ट ही रख सकते हैं और एक छोटे से एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। तो लंच के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं गुड़ इज़ वेरी हाई इन आयरन एज वेल। अगर आपको काला गुड़ मिलता है तो नथिंग लाइक इट।
तो ट्राई एंड बाय ऑर्गेनिक गुड़। हमारे कंट्री में तो बहुत गुड़ मिल जाता है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गो इन फॉर द स्लाइटली लाइटर लुकिंग गुड़, लेकिन उसमें बहुत सल्फर होता है। तो अगर आप कभी शीर कुरमा बनाने की कोशिश करिए इस गुड़ के साथ, वो फट जाएगा। यू नो दैट देयर इज सो मच सल्फर दैट दे यूज टू वाइटन दैट गुड़। तो ट्राई एंड स्टिक टू ऑर्गेनिक गुड़। इसके अलावा आमंड्स, बादाम, अगर हो सके आपसे तो प्लीज़ बादाम का सेवन करिए इस समय, बिकॉज I want people to understand while you are having vitamin C, you need a fat soluble vitamin as well, and that is what बादाम is. तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ये विटामिन सी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा फैट है, सो इट्स दैट काइंड ऑफ गुड विटामिन। यू नीड विटामिन ई टू ब्रेक डाउन विटामिन सी एंड yeah, so I religiously have walnuts and badam early in the morning, जो मैं previous रात को soak करती हूँ, and it's made a huge difference to not just my skin, my immunity and my hair and nails. So everybody wants that. Yes, turmeric के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा इस समय में, because it's not only an anti-inflammatory, it also is an antibiotic. तो जब आप उसको घी में मिक्स करते हैं, जो हमारी कुकिंग है, इंडियन कुकिंग, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो पहले जब हम छौंक देते हैं घी में और हल्दी डालते हैं और हींग डालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ही कमाल की है, एंड इट ऑब्वियसली वर्क्स ऑन द इंटरनल सिस्टम एज वेल. And those properties, I just feel they can't be replaced with any other product. So you should stick to what Ayurveda has prescribed for years on end and for time immemorial, and I really live by those principles. So I would suggest कि आप भी अगर आपसे हो पाता है तो घी में थोड़ा सा टर्मरिक डालिए। कैंसर की बीमारी को क्योरेटिव के लिए they have started using curcumin, and that is a derivative of turmeric, and it's so beautiful that our country can boast of all these really beautiful herbs and condiments that come from here. It's from our land. So yeah, the spices, we underestimate the power of our spices, and we should absolutely make use of it. What else can I say? I just feel that, you know, if you can, you have to change. We have to change our lifestyle. और ये टेम्परेरी चेंज नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन के समय इस चेंज को लेके आएंगे हम, इस बदलाव को लेके आएंगे, और अगर आपको लगता है कि इसके बाद हम अपने आप को एक मतलब पूरी खुली छूट दें कि कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए और उसका कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में, तो ऐसा होगा नहीं। आई थिंक अ लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टिक विद, एंड कभी कभी आप उसे लेट गो करिए। जैसे मैं करती हूँ, संडेज़ के दिन मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं भजे भी खाऊँ, मैं बिरयानी भी खाऊँ, मैं कुल्फ़ी भी खाऊँ, और जितना मीठा हो सके वो मैं खा लेती हूँ। बट दिस इज़ एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर मी टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू एंड से कि अगर लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुम अपने आप को ऐसे मेंटेन कैसे कर लेती हो, इसका श्रेय जाता है मेरे लाइफस्टाइल पे और मेरे डिसिप्लिन पे। तो अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है हम सब की ज़िंदगी में। अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो अनुशासन के बगैर नहीं होगा। तो ये बहुत ही कमाल का वक्त है, और जैसे कि आज मैंने अपने मंत्रा में भी लिखा, मैं हर ट्यूसडे को मंत्रा लिखती हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि डिसिप्लिन को बनाने के लिए आपको 21 डेज लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, एफर्ट लगता है, लेकिन उसे लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको 90 दिन लगते हैं। सो वंस इट्स क्रिएटेड इनटू अ लाइफस्टाइल, फिर
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम, और आप इंजॉय करने लगेंगे क्योंकि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि बाप रे, इस लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ा है आपके ज़िंदगी में ही नहीं, आप जैसे दिख रहे हैं आपके बॉडी में भी। सो आई थिंक हेल्थ मेरे लिए सर्वोपरि है और आपके लिए भी होना चाहिए। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और आई जस्ट वांट टू थैंक, हार्टफेल ग्रैटिट्यूड के साथ मैं उन सारे हेल्थ केयर ऑफिशियल्स, हमारे जितने भी बीएमसी वर्कर्स, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ दिल से कि इतने निस्वार्थ तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। एंड इट रियली इज़ अमेजिंग टू सी दिस अनकंडीशनल सेल्फलेस लव एंड सर्विस। मे यू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। और जितने भी देख रहे हैं मुझे, मैं कनेक्ट करती रहूँगी आपके साथ। इन द मीनवाइल अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, यू कैन प्लीज़ गो एंड डाउनलोड द शिल्पा शेट्टी ऐप। अगर आप अब तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू in your fitness journey, in your journey of wellness. So stay home, stay safe, and don't get depressed. Try and make yourself happy with different things. और ये जो वक्त मिला है हमें अपने फैमिलीज़ के साथ, उसे हमको वैल्यू करना चाहिए क्योंकि शायद ही आगे कभी मिलेगा ऐसा वक्त, और हम तरसते रह जाएंगे।